6 مارچ 2026 میں خوش آمدید۔ ہر جمعے کے دن ویکلی ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ویکلی ہوراسکوپ 6 مارچ 2026 سے لے کے 12 مارچ 2026 پر مبنی ہے۔ ان ایام میں مولا علی علیہ السلام کی ضربت کی رات ہے، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے اور شب قدر کا آغاز ہے۔ تبھی یہ ہفتہ بہت ہی اہم ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ زمین کا جو فیض ہے وہ ہمیشہ دولت سے جڑتا ہے، اور آسمان کا جو فیض ہے وہ ہمیشہ روحانیت سے جڑتا ہے، اور مٹی کا جو باپ ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اس لیے کوشش کر کے ان راتوں میں مولا علی علیہ السلام سے استغاثہ کیجیے گا، مولا علی علیہ السلام کا دیا اپنے گھر میں جلائیے گا، اور یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی 108 مرتبہ روز رات کو پڑھ کے اللہ کی دربار میں مولا علی کے صدقے دعا مانگیے گا۔ دیکھیے گا آپ کی دعاؤں کو پرواز ملے گی۔ جو انسان ان راتوں میں یعنی اس ہفتے میں روز مولا علی علیہ السلام کا منت کا دیا جلائے اور ناد علی ناد علی ناد علی مظرہ العجائب 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک کی دربار میں دعا مانگے کہ اے میرے اللہ اس ایک ہفتے میں میری دعا قبول و مقبول فرما دے، تو محمد و آل محمد کے صدقے مٹی سے جتنے بھی اسباب جڑے ہوں گے، دولت کے، کاموں کے، وہ سب آپ کی زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ مٹی کبھی بھی وہ دعا رد نہیں کرتی جو مولا علی علیہ السلام کے صدقے اللہ کی دربار میں پیش کی گئی ہو۔ یہ ہفتہ بچوں پہ رحم کیجیے گا، یتیموں کا خیال رکھیے گا۔ امام علی علیہ السلام کی وصیت ہے کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ اگر جتنی بھی دامن میں وسعت ہے اس حساب سے اگر پڑوس میں کوئی یتیم رہتا ہے تو کوئی میٹھی چیز راشن کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، دودھ کی صورت میں، مٹھائی کی صورت میں، گندم کی روٹی کی صورت میں، کھجور کی صورت میں اس کے گھر ضرور بھجوائیے گا۔ دیکھیے گا ان سے آپ کی مرادوں کو پرواز ملے گی، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اندر سے بہت ہی خود غرض ہو چکے ہیں، دعا بھی اس کے لیے مانگتے ہیں جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ جو انسان بغیر کسی فائدے کے اللہ کی دوسری مخلوقات کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگے، اپنے پڑوس میں رہنے والوں کے لیے دعا مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگے، جن سے آپ کا واسطہ نہیں بھی ہے ان کے لیے دعا مانگے، دوسری مخلوقات کے لیے دعا مانگے، اور پھر اپنی دعا اللہ کی دربار میں پیش کریں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ یہ جو ہفتہ ہے اس میں سورہ قدر کو روز 27 مرتبہ پڑھنا بہت مبارک ہے، اگر وقت ہے تو 108 مرتبہ پڑھنا بہت مبارک ہے۔ جو انسان کھجور پہ سورہ قدر 108 مرتبہ مغرب کے وقت پڑھ کے کھائے گا تو الہامی طاقتوں کے ساتھ جتنی بھی دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی وہ قبول ہو جائیں گی۔ نصیب الجھا ہوا ہے، کام رکے ہوئے ہیں، رشتے اچھے نہیں آتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں فراوانی نہیں ہے، مقروض ہو چکے ہیں، سب دعائیں اللہ قبول کر دے گا، کیونکہ اس ہفتے میں سورہ قدر پڑھ کے اللہ کی دربار میں دعا مانگنا انسان کے وجود میں غیبی امداد کا رستہ ہموار کرتا ہے، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جب آسمان کا فیض زمین پہ نازل ہوا۔ میں نے ابھی گزارش کی کہ زمین کا فیض مٹی سے جڑا ہے، آسمان کا فیض روحانیت و معرفت سے جڑا ہے، یعنی زمین ہمیں اسباب دیتی ہے رزق کے اور آسمان ہمیں اسباب دیتا ہے روحانیت و معرفت کے۔ تو یہ جو آخری راتیں رمضان کی ہیں ان میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت بھی ہے اور قرآن پاک کا نزول بھی ہے۔ تبھی ان راتوں کو آپ حقیر نہ سمجھیے گا، ان راتوں کو سو کے نہ گوائیے گا۔ سورہ قدر پڑھنے والے کی الہامی طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی مرتبہ بڑھتا ہے، روحانی حوالے سے، الہامی حوالے سے ان کی شخصیت میں ایسی قدر پیدا ہوتی ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس سے رشتہ جوڑنا ہے کس سے دوری اختیار کرنی ہے، یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے فضل سے انسان کے دماغ پر حاوی ہوتی ہیں، اور رزق کے حوالے سے اسباب مولا علی علیہ السلام سے استغاثہ کرنے سے آئیں گے۔ یعنی اگر آپ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو ناد علی بار بار پڑھیے گا، اور اگر روحانی حوالے سے، الہامی حوالے سے خود کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سورہ قدر کوشش کر کے 27 مرتبہ، اگر وقت ہے تو 108 مرتبہ روز پڑھیے گا۔ دیکھیے گا الہامی طاقتوں کے ساتھ غیبی اسباب سے رزق آپ کا بڑھتا جائے گا۔ ان ایام میں پانی زیادہ پینا بہت مبارک ہے، ان ایام میں کھجور کھانا بہت مبارک ہے، ان ایام میں یتیموں کا خیال رکھنا بہت مبارک ہے، ان ایام میں اپنی عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، ان ایام میں گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم جو نظر اثر میں جلدی مبتلا ہوتے ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ناخنوں میں مٹی جمع ہوتی ہے۔
जिस भी इंसान के नाखूनों में मिट्टी जमा होती है तो शैतान वहाँ क़याम करता है। जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है, जब वो अच्छा काम करना चाहता है तो न चाहते हुए भी एक ऐसा दायरा कायम करता है कि रहमत उसके करीब नहीं आती। इसलिए हमेशा बुज़ुर्ग कहते हैं कि नाखूनों में मिट्टी जमा होने ना दें। देखें कि आपके नाखून अगर बड़े हुए हैं तो फ़ौरन काट लें, अगर काट नहीं सकते तो नाखूनों में जो मिट्टी है उसको निकाल दें। इनसे आप जिस्मानी और रूहानी अमराज से अल्लाह की पनाह में होंगे और नज़र, हसद, जितने भी नेगेटिव एनर्जी के असरात हैं वो कभी भी आप पे हावी नहीं होंगे। दूसरा अमल, हम जब सोते हैं तो हमारी चारपाई के नीचे, हमारे बेड के नीचे अजीब व गरीब चीज़ें बाद मरतबा लोग रख देते हैं। कचरा रख देते हैं, पुराना सामान रख देते हैं, घर का सामान स्टोर रूम की तरह बेड के नीचे, चारपाई के नीचे रख देते हैं। इनसे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। शैतान हर उस जगह पे अपना घर बनाता है जहाँ मेल होती है, जहाँ निजासत होती है। कोशिश करके अपनी किचन को मैला न रखिएगा, अपनी औरतों पे जुल्म न कीजिएगा। अगर इन अय्याम में सफ़ेद लिबास ज़्यादा पहनते हैं तो बेहतर है, और अपने दरवाजे पे नाद अली उंगली से लिख देते हैं तो बहुत मुबारक है। पेशानी पे रात को सोने से पहले नाद अली लिख के किसी भी मुराद के लिए अल्लाह की दरबार में दुआ मांग के सोएंगे तो इल्हामी ताकतों के साथ आपके लिए असबाब पैदा होंगे। इन अय्याम में कोशिश करके अगर आप जब जब बैठते हैं और चाहते हैं कि कोई दुआ आपकी फ़ौरन कबूल हो तो नाद अली, नाद अली, नाद अली, नाद अली, सिर्फ इतना आप पढ़ते रहिएगा। इनसे अल्लाह पाक के फजलो करम से एक ऐसा दायरा आपके चारों तरफ कायम होगा जिनसे कायनात पूरी आपके लिए सबब पैदा करेगी कि वो मुराद पूरी हो जाए। इन अय्याम में खुश रहना, मुतमईन रहना, हाजिर दिमाग रहना, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ख़ुद को मसरूफ़ करना बहुत मुबारक है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये अय्याम बड़ा मुबारक है, लेकिन बस कोशिश करके जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें, उनसे इख्तलाफात मंजर आम पे आ सकते हैं। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से आपकी ज़िंदगी में तरक्की के असबाब पैदा होंगे। ये अय्याम आपकी ज़िंदगी में बहुत ही तेज़ी और तब्दीली भी पैदा करेंगे। तभी कोशिश करके अगर चांदी हाथ में पहनते हैं तो बेहतर है। मिट्टी की तस्बीह अगर हाथ में लेते हैं और रोज़ रात को सोने से पहले उस तस्बीह पे नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ के अल्लाह पाक की दरबार में दुआ मांगते हैं, यानी 108 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब मिट्टी की तस्बीह पे पढ़ते हैं तो वो भी गैबी इमदाद के लिए बहुत ही मुबारक होगा। इन अय्याम में अगर आप थोड़ा सा हर उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो ख़ुद के करीब करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इन अय्याम का जो ख़ास सदका है वो सफ़ेद चीज़ का है। आटा लेके किसी मुस्तहिक को दे दें तो बेहतर है, और उसके साथ अगर खजूर लेके हस्ब तौफीक किसी मुस्तहिक को देते हैं तो बहुत बेहतर है। यानी खजूर और आटा, ये दो चीज़ें हस्ब तौफीक लेके किसी मुस्तहिक को दे दें। और इन अय्याम का जो ख़ास इसमें आज़म है वो नाद अली को 27 मरतबा पढ़ना है और 27 मरतबा सूरह कद्र को पढ़ना है। रोज़ सुबह के आगाज़ में 27 मरतबा सूरह कद्र और 27 मरतबा नाद अली पढ़ के जहाँ जहाँ जाएंगे फ़तेह कामयाबी आपके कदमों में होगी। बुर्ज एरीज़ वालों के लिए ये अय्याम बहुत अहम, बहुत मुबारक और कामों में आसानियों के असबाब पैदा करेंगे। हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, मीठी ज़बान को कायम कीजिएगा। इंशाअल्लाह फ़तेह कामयाबी के असबाब आपके साथ साथ होंगे। नहीं यामी जल्दबाजी से बचें, डार्क कलर पहनने से दूरी इख्तियार करें तो बेहतर है। अगर डार्क कलर पहनते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के सोग के लिए तो फिर कोशिश करके उसके साथ कोई सब्ज़ रुमाल या कोई सब्ज़ चीज़ अपने साथ रखें। इनसे जितनी भी नेगेटिविटी है वो इंशाअल्लाह आपसे दूर होगी। हाथ में चांदी पहनना बहुत मुबारक है। इल्हामी ताकतों से जुड़ना नैया में बहुत मुबारक है। आधा घंटा वॉक पे जाना बहुत मुबारक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो ये अय्याम आपके लिए बहुत मुबारक है। बस किसी झगड़े में आप मुब्तला होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कोशिश करके जज्बाती फैसलों से ख़ुद को दूर रखें। इनका भी नियाम का सदका खजूर का और आटे का, और इसमें आज़म वापस की दे सकते हैं। जब जब चांद ग्रहण आता तो उन चांद ग्रहण के लम्हात में लोहे कमर बनाया जाता है जो खास इसमें आज़म के विर्द और पाकाई के साथ अपनी मंजिल पाता है। जो भी ये चांद ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ लोहे कमर अपने साथ रखेगा या अपने बाजू पे बांधेगा तो जहाँ जहाँ कदम बढ़ाएगा तवज्जह का मरकज बनेगा। फतेह कामयाबी उसके साथ साथ होगी और कोई भी नजर, हसद, जादू, तावीज़ात और तमाम नहस असरात कभी उसके करीब नहीं आएंगे। तो मेहरबान स्टूडेंट्स की तरफ से हमने आपके लिए भी ये खास चांद ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ लोहे कमर गिफ्ट रखा है। आज, कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो ये पढ़ा हुआ लोहे कमर आपको गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये इसमें आज़म तमशुदा चांद ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ लोहे कमर हासिल करें। टॉरस वालों के लिए ये यहाँ बड़े अहम, मुबारक और कामों में आसानियों के असबाब पैदा करेंगे। जितना आप हाजिर दिमाग रहेंगे उतना बड़ा फायदा आपके कदमों में आएगा। इन अय्याम में कुछ अज़दबाजी झगड़े भी मंजर आम पे आते हुए
दिख रहे हैं, इसलिए कोशिश करके जज्बाती जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है, पुराने साथी कोई ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं। याद रहे, साथियों को, दोस्तों को दोस्त रखें, लेकिन हमराज जल्दबाजी में ना बनाएं जब तक उन पर भरोसा कायम नहीं होता। किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो रुक जाएं तो बेहतर है। अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो दिल को पीछे, दिमाग को आगे रख के फिर कदम उठाएं तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। इन अय्याम में किसी ऐसे अपने से भी आपका झगड़ा हो सकता है जिनसे आपकी मोहब्बत जुड़ी है, जिनसे आपका दिल और फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोशिश करके छोटी बातों को दरगुजर करें। कोई कुछ कहता भी है तो सब्र के साथ जवाब दें। इंशाल्लाह इख्तिलाफ़ात से दूर होंगे तो कामों में आसानी के रास्ते देर तक कायम होंगे। इनका भी नियाम का सदका खजूर का और आटे का और इसमें आज़म वापस की दे सकते हैं। बुरे जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम और बड़ा मुबारक होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी और खुशियों के रास्ते हमवार होंगे। इसलिए हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। इंशाल्लाह तरक्की के असबाब आपके साथ साथ होंगे। इन अय्याम में अगर नाद अली रोज़ रात को 108 मरतबा पढ़ते हैं तो इल्हामी ताकतों के साथ आपकी मुरादें पूरी होंगी। ये अय्याम आपकी दुआओं को कबूल करवाएंगे, इसलिए हाजिर दिमाग रहने के साथ रोज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करें। ताज़ा हवा में कुछ देर जाना, पानी ज़्यादा पीना इन अय्याम के लिए बेहतर है। खजूर किसी मुस्तहिक को देना जितनी भी मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में वो सब ख़त्म करेगा। जितना आप पुरसुकून, हाजिर दिमाग और चेहरे पे मुस्कुराहट कायम रखेंगे उतने ही इख्तिलाफ़ात के रास्ते आपसे दूर दूर होंगे। 3 बड़ी खुशियाँ इस हफ्ते में आपको मिलनी है, लेकिन उसका ताल्लुक आपकी हाजिर दिमागी और मीठी ज़बान से है। इनका भी नियाम का सदका खजूर का और आटे का और इसमें आज़म वापस की दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों की ज़िंदगी बदलने वाली है। इल्मी राज आपकी ज़िंदगी में पैदा होगा, बस आप हाजिर दिमाग रहें, क्योंकि अभी आपको पुरानी यादें सताएंगी। पुरानी बातों को, पुरानी यादों को बार बार याद करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आज वाली मुतासिर हो सकती है। इसलिए कोशिश करके ख़ुद को मुतमईन और पुरसुकून रखने के साथ कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पर चलें, कुछ देर अपने पाँव पानी में डाल दें, ख़ुद को खुद में उलझाएं, छोटी छोटी खुशियों को क्रिएट करें। खुशी कभी आती नहीं, हमें पैदा करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों को लेकर पूरा दिन सोचते रहेंगे, इनसे आपकी सेहत और आपके काम मुतासिर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए यह हफ्ता बड़ा अहम साबित होगा। कोशिश करके किसी चीज़ को बेचने में जल्दबाजी न करें। जितना सब्र और हिकमत अमली के साथ कदम उठाएंगे, लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात की बातें कम सुने और कम देखेंगे, उतना ही तरक्की के असबाब आपके साथ साथ होंगे। ये अय्याम इल्हामी ताकतों से आपको जोड़ेगा, इसलिए सफ़ेद बिस्तर पर सोना बहुत ज़रूरी है। हाथ में चांदी पहनना बहुत ज़रूरी है। सूरह कद्र को रात को 108 मरतबा रोज़ पढ़ते हैं तो इन 7 अय्याम के बीच में आपकी तमाम मुरादें कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इनका भी नियाम का सदका खजूर का और आटे का और इसमें आज़म पथस की दे सकते हैं। इंसान की पहचान ही कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम है, क्योंकि जब हम इंसान को पहचान के फैसला करते हैं तो देर तक कामयाबी हमारे साथ होती है, दुख और नुकसान हमसे दूर दूर होता है। तभी अल्लाह ने इस ज़मीन पे नीलम पत्थर पैदा किया। जो इंसान इस नीलम पत्थर को अपनी जहल वाली उंगली यानी बीच वाली उंगली में पहनेगा तो उसकी आंखों में ऐसी ताकत पैदा होगी कि वो किसी भी इंसान की आंखों को देखेगा तो फौरन पहचान लेगा कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये नीलम पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये चांद ग्रहण में पढ़ा हुआ लोहे कमर आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे कमर महदूद मिकदार में ही। लियो वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है। राज का हफ्ता है, कामयाबी का हफ्ता है, कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा करेगा। इन अय्याम में डार्क कलर कम पहनते तो बेहतर है। अगर डार्क कलर पहनना ज़रूरी है, मौला अली की वजह से डार्क कलर पहनते हैं, मौला अली की वजह से सियाह लिबास पहनते हैं, तो फिर उसके साथ कोई सब्ज़ चीज़, सब्ज़ रुमाल अपने साथ रखें। इनसे इंशाअल्लाह नज़र असर से आप दूर होंगे, क्योंकि इन अय्याम में आपको नज़र असर लगती हुई दिख रही है। कोशिश करके सुबह और रात को चारों के लिए 1 मरतबा आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पानी पे दम करके पीते हैं तो बेहतर है, या रात के इख्तिताम में पानी पे चारों को आयतुल कुर्सी दम करके पीते हैं तो बहुत मुबारक होगा। जहाँ भी जाते हैं कान के पीछे काला टीका लगा के जाते हैं तो इंशाअल्लाह नज़र हसद आपको नहीं लगेगी, क्योंकि अभी कोई आपकी बड़ी खुशी रुक सकती है। खुशियों को वक्त से पहले जाहिर न करें, खुशियों को जाहिर करेंगे वक्त से पहले तो खुशियाँ मिलते मिलते रुक सकती हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हफ्ता अहम है, बस जज्बाती या जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें। किसी अपने से झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, इसलिए कोशिश करके लोगों को आईना कम दिखाएं। इनका भी नियाम का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम पथस की दे सकते हैं। वर्गो वालों के लिए ये हफ्ता अल्लाह के फजल से कामयाबियों के रास्ते हमवार करेगा। आप जितना मुतमईन और पुरसुकून रहेंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें, तल्ख कलामी से बचें। इल्मी राज आपकी ज़िंदगी में कायम होगा। जितना मिर्च मसाले से चटपटे
चटपटी चीज़ें इस हफ्ते कम खाएंगे, बेकरी आइटम्स कम खाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। फल सब्जियां इस हफ्ते ज़्यादा खाएंगे तो बहुत मुबारक है। ये हफ्ता आपको किसी अपने से मिलाएगा, किसी खुशी से मिलाएगा, किसी दौलत के रास्ते से मिलाएगा। इसलिए कोशिश करके ख़ुद को मुतमईन रखने के साथ मीठी ज़बान के साथ गुफ्तगू किया करें। सुने ज़्यादा बोलें कम तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में होगा। ये हफ्ता आपको इल्हामी ताकतों से भी जोड़ेगा, इसलिए हाजिर दिमाग रहना बहुत ज़रूरी है। इनका भी नियाम करत का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पतस की दे सकते हैं। तो लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम इस वजह से भी है क्योंकि आपकी खोए हुए मर्तबे फिर से आपको हासिल होंगे। इल्हामी ताकतों के साथ आपकी दुआएं कबूल होंगी। पूरा हफ्ता हाजिर दिमाग रहें। लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात की खबरें कम सुना करें। सारा दिन एक जैसी बातों को और स्क्रीन के साथ चिपके रहेंगे तो आपकी खुशियों को नज़र लग सकती है। इल्हामी और माशी हवाले से राज तब हासिल होगा जब आपकी ज़बान मीठी होगी और हाजिर दिमागी कायम होगी। हाथ में चांदी पहनना बहुत मुबारक है, इनसे आपको औरा और मजबूत होगा। जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। डार्क कलर कम लाइट कर ज़्यादा पहनते हैं, पानी अपने साथ रखते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, खजूर खाते हैं रात के वक्त या शाम के वक्त तो बहुत मुबारक है। सूरह कद्र पढ़ के खजूर खाना इल्हामी ताकतों के साथ आपकी गुफ्तगू को मीठा करेगा, जिनसे आपका असर लोगों के दिमाग और दिल पे होगा। ये हफ्ता आपकी गुफ्तगू से आपको कोई राज इल्म कामयाबी हासिल करवाएगा। इनका भी नियाम गलत का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पतस की दे सकती हैं। बट स्कॉर्पियन के लिए ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है। आप डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा देखें, उन लोगों से मिलें, उन लोगों से बात करें जिनसे आपके इल्म में इजाफा होता है। कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कदम बढ़ाएं, लेकिन बड़े सफ़र से खुद को दूर रखें। माशी और माली हवाले से 3 बड़े असबाब आपसे जुड़ेंगे, इसलिए कोशिश करके हाथ में चांदी पहनते हैं, रोज़ वॉक पे जाते हैं, चिपचिपी तली हुई चीज़ें हफ्ते कम खाते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। जितना आप मुतमईन और पुरसुकून होंगे, हाजिर दिमागी के साथ गुफ्तगू करेंगे, सुन के उसके बाद जवाब देंगे, उतना ही नुकसानात से आप दूर होंगे। इस हफ्ते कुछ देर दोपहर के वक्त रोज़ कर सकते हैं तो बेहतर है, वरना हफ्ते में 1-2 मरतबा कर लें। अपने पाँव पानी में डाल दें। इनसे जितने भी नेगेटिव असरात हैं, नज़र के, हसद के, इख्तलाफात के, वो सब आपसे दूर होंगे। ये हफ्ता इल्मी राज को भी पैदा करेगा, कामों में आसानियों के रास्ते को भी हमवार करेगा। बस मरतबे हासिल तब होंगे जब आपकी ज़बान मीठी होगी। जल्दबाजी और गुस्से से खुद को दूर रखें। इनका भी नियाम करत का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पतस की दे सकते हैं। जिस भी इंसान के हाथों में दौलत नहीं टिकती, जिस भी इंसान के काम नहीं होते, तो हमारे आबा व अजदाद रमज़ान की रातों में फजर के वक्त फिरोज़े पत्थर पर ख़ास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते। अल्लाह के फजल से जो भी ये रमज़ान में पढ़ा हुआ फिरोज़ा पहनता, अल्लाह के फजल से उसके हाथों से कभी दौलत कम ना होती, उसका हाथ पैसों से भरा रहता। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये दौलत बढ़ाने वाला फिरोज़ा पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये चांद ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ लोहे कमर आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे कमर महदूद मिकदार में है। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता रूहानी हफ्ता है, दुआओं की कबूलियत का हफ्ता है। नाद अली को अपनी ढाल बना लें, नाद अली को ज़्यादा पढ़ा करें। नाद अली को सुबह के आगाज़ में 27 मरतबा, रात के इख्तिताम में 27 मरतबा पढ़ के सोया करें, उठा करें, तो देखिएगा इल्हामी ताकतों के साथ गैबी असबाब आपसे जुड़ेंगे। और उसके साथ साथ सूरह कद्र भी पढ़ें। सूरह कद्र को कोशिश करके शाम के वक्त पढ़ते हैं तो बेहतर है, आधी रात के वक्त पढ़ते हैं तो बेहतर है, सहरी के वक्त पढ़ते हैं तो बेहतर है। इनसे इल्हामी ताकतों के साथ आपकी ज़बान में तासीर पैदा होगी। किससे क्या बात करनी है ये हुनर अल्लाह आपको अता करेगा। कोशिश करके हाथ में चांदी पहने, वॉक पे ज़रूर जाएं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। बस जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें, गुस्से पे काबू रखें। इनका भी नियाम करत का खजूर का और सफ़ेद चीज़ का, इसमें आदम पतस की दे सकती हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम होगा। इल्मी राज भी लाएगा, कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा करेगा। बस किसी अपने से लड़ाई इस हफ्ते में दिख रही है। कोई दूर वाला बंदा, कोई बिछड़ा हुआ साथी भी मंजर-ए-आम पे आता हुआ दिख रहा है। इसलिए कोशिश करके लोगों को आईना कम दिखाएं, हाजिर दिमागी पे तवज्जो दें। जितनी मीठी ज़बान होगी उतना बड़ा फ़ायदा कदमों में आएगा। रोज़ वॉक पे जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ुद को मुतमईन रखना, ख़ुद को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करना अभी आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, इल्हामी ताकतों के लिए भी ज़रूरी है, आपकी दिमागी सेहत के लिए भी अच्छा है। और कब किससे क्या बात करनी है ये इस चीज़ से वाज़ेह होगा। अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे, सुस्त बैठेंगे, स्क्रीन के साथ चिपके रहेंगे तो वो एक ही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी, जिनसे आपके रिश्ते, आपका काम उलझ सकता है। ये हफ्ता सेहत के लिए थोड़ा सा नाहिस है, इसलिए कोशिश करें कि फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, मिर्च मसाले बेकरी आइटम्स कम खाएं तो बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये हफ्ता बड़ा ही अहम और मुबारक होगा। इनका भी नियाम का खजूर का और आटे का, और इसमें आज़म वापस की दे सकते हैं। आपके बार बार इसरार पर यह मर्दाना कुव्वत बढ़ाने का शरबत
ہم نے اس نسخے کو آپ کے لیے رکھا ہے جس کو آپ مباشرت سے پہلے جیسے ہی استعمال کریں گے تو دیر تک مباشرت کر پائیں گے، ازدواجی حقوق پورے کر پائیں گے، جلد صاحب اولاد ہوں گے اور دیر تک مباشرت کر کے ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزاریں گے۔ یہ نسخہ ہمارے آباء و اجداد کا صدیوں پرانا نسخہ ہے۔ بس مباشرت سے پہلے 1 چمچ اس شربت کا پی لیجئے گا اور پھر کچھ منٹ کے بعد مباشرت کیجئے گا، دیکھیے گا آپ اپنے جسم میں قوت اور دیر تک مباشرت کر پائیں گے۔ یہ شربت خاص جڑی بوٹیوں اور خاص وظائف سے تیار کیا جاتا ہے، تو آج ہی مہربان شفا خانہ کے نمبر پہ کال کریں اور یہ مردانہ قوت بڑھانے والا شربت حاصل کریں۔ بری عقیدت والوں کے لیے یہ ہفتہ تحقیق کا ہفتہ ہے، علم کا ہفتہ ہے، خوشیوں کے لیے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ بس کوشش کر کے اس ہفتے ہاتھ میں چاندی پہنیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، پانی زیادہ پئیں، کھجور بھی اگر نہ دے لیو سورہ قدر دم کر کے کھاتے ہیں رات کے وقت یا سحری کے وقت تو بہت مبارک ہوگا۔ جتنا مطمئن ہوں گے، حاضر دماغ ہوں گے، اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ بس جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، تلخ کلامی سے بچیں، لوگوں کو آئینہ دکھانے سے دوری اختیار کریں۔ جتنا آپ لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ کی زندگی میں اسباب پیدا ہونے ہیں۔ بس جتنا ہو سکے خود کو مطمئن و حاضر دماغ رکھیں۔ آپ غیر حاضر رہیں گے، پرانی باتوں کو یاد کریں گے تو آپ کا آج متاثر ہوگا۔ ابھی حاضر دماغ رہنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کوشش کریں کچھ دیر زمین پہ بیٹھیں، ناک سے بڑی سانس لیں، سانس کو روکیں، پھر منہ سے سانس چھوڑیں۔ ان سے جتنی بھی نیگیٹیوٹی آپ کے آس پاس ہے وہ انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ معاشی اور مالی حوالے سے 3 بڑی خوشیاں اس ہفتے میں ملتی ہوئی دکھ رہی ہیں، لیکن اس کا تعلق آپ کی میٹھی زبان و حاضر دماغی سے ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کھجور کا اور آٹے کا اور اس میں عدم پتھر کی میں دے سکتی ہیں۔ بول پیسے والوں کے لیے ہفتہ تحقیق کا ہفتہ بھی ہے، علم کا ہفتہ بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ہفتہ بھی ہے۔ اس لیے کوشش کریں خود کو مطمئن و پرسکون رکھیں، ڈارک رقم لائٹ کر زیادہ پہنیں یا سبز کوئی چیز، سبز کوئی رومال اپنے ساتھ رکھیں، ہاتھ میں چاندی پہنے تو بہت مبارک ہوگا۔ نظر حسد بھی اس ہفتے آپ کو لگتی ہوئی دکھ رہی ہے، اس لیے صبح کے آغاز میں چاروں کو آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں یا ویسے ہی پڑھ کے سینے پہ دم کر دیتے ہیں تو نظر حسد کے جتنے بھی نیگیٹو اثرات ہیں وہ آپ سے دور ہوں گے۔ علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ کی زندگی میں راج آئے گا، اس لیے کوشش کریں خود کو مطمئن رکھنے کے لیے کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں ڈال دیں۔ ان سے جتنی بھی نیگیٹو آس پاس انرجی ہے وہ مدھم ہوگی۔ گھڑی اس ہفتے پہننا بہت مبارک ہے اور گھڑی پہ نصر من اللہ ہے و فتح قریب 27 مرتبہ پڑھ کے جہاں بھی جائیں گے تو آپ کا وقت، آپ کی قسمت بہتر ہو جائے گی۔ کب کس سے کیا بات کرنی ہے وہ ہنر آپ کو عطا ہوگا۔ ابھی گفتگو سے آپ کو راج ملے گا، اس لیے زبان کو میٹھا رکھیں، فوراً وہ نہ کہیں جو دل میں آتا ہے۔ میٹھی زبان سے ترقی ملے گی، غصے اور اختلافات سے بنے بنائے کام بگڑ سکتے ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے کچن کو صاف رکھیں، اپنے واش روم کو صاف رکھیں، رات کو باوضو ہو کے سوتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کھجور کا اور آٹے کا اور اس میں اعظم پتھر کی میں دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے دربار میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، جو جو ہمیں دیکھ رہے سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔